This conference will now be Yes. So, good morning, all the students. Can you hear me? Is my voice audible to everyone? Yes, sir. Yeah. So, in the previous session, we have discussed about relationship. We do have checked on two types of relationship, that is master detail and lookup relation. Now, the lookup relation is is not a mandatory field, and the master detail, whereas it's a mandatory field, right? You have to have a data inside a master detail field. If you don't have a data inside the master detail field, then you cannot create a record. Whereas in case of this what I mean to say, this one lookup relationship, if you are having a data inside a lookup relationship, that is fine. And even if you don't have any data or any relationship or any value inside that lookup relationship, then that is also absolutely fine. It's not a mandatory field, right? So there are certain limitations, right? There are certain limitations that on an object. Now, yesterday we have created the lookup field and the master detail field on the object name patient. हमने पेशेंट जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसके ऊपर ये दोनों फील्ड्स बनाए थे. So how many fields or the how many relationships that we can have on an object? हमने कौन कौन से ऑब्जेक्ट पे फील्ड्स बनाए थे, रिलेशन बनाए थे, दैट इज पेशेंट. पेशेंट ऑब्जेक्ट पे जो मास्टर डिटेल फील्ड था वो किसको रिलेट कर रहा था, हॉस्पिटल ब्रांच को रिलेट कर रहा था. एंड जो लुकअप था वो किसको रिलेशन दे रहा था, किसके साथ रिलेशन था उसका, डॉक्टर के साथ. नाउ वी कैन हैव वी कैन हैव टोटल 40 रिलेशंस. एक ऑब्जेक्ट पे हम ज्यादा से ज्यादा कितने रिलेशनशिप बना सकते हैं, 40 रिलेशन, राइट? अभी उसमें से दो जो है हमारे, दो रिलेशंस जो है वो मास्टर डिटेल हो सकते हैं. इन शॉर्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट वी कैन हैव ओनली टू मास्टर डिटेल फील्ड्स. जैसे हमने पेशेंट पे कल एक मास्टर डिटेल फील्ड बनाया था, किसके साथ, हॉस्पिटल ब्रांच के साथ. वी कैन हैव वन मोर मास्टर डिटेल रिलेशनशिप. अगर हमें प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है, हमें और एक मास्टर डिटेल रिलेशनशिप चाहिए, राइट? देन वी कैन हैव this one more relationship. Of course we can have two at the most, but if we try to create a third relationship, that too with a master detail relation, then the system won't permit. System आपको इसकी permission नहीं देगा. That is the limitations, right? Similarly, टोटल हम कितने बना सकते थे, 40 बना सकते थे, राइट? उसमें से कुछ सिस्टम जनरेटेड भी होते हैं. मतलब जैसे सेल्सफोर्स कुछ फील्ड्स खुद से बनाता है, उसमें कुछ लुकअप्स भी वो खुद से बनाता है. जैसे जो यूजर ने वो डेटा बनाया उसके साथ लुकअप बना दिया, किसी और के साथ लुकअप बना दिया, राइट? सो किसी और डेटा के साथ में भी सिस्टम खुद होके रिलेशन बनाता है. तो हमारे हाथ में बचते हैं ऐसे कर करके 25 लुकअप्स. अप्रोक्सीमेटली हम 25 के आसपास लुकअप एक ऑब्जेक्ट पे बना सकते हैं, और दो हम उसके मास्टर डिटेल रिलेशनशिप वी कैन हैव इट. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Right. Now Sonali, go to your our application. Yes. Okay. Now one more point that I wanted to show you. Now here, open any patient, या फिर no, don't open any patient. uh, open any this mm, uh, hospital branch. Okay, how many branches are there? Only one branches that we have created, right? Okay. No, Now three.
Okay, yeah. Three branches we have. Right. Okay, good one. Now, open the patient. Open the patient object. Okay, how many patients are there? One, two. Only one. Okay, only one patient do we have. Right. Now create one or two patient more. Two patient more. Yes. इसके लिए दूसरा हॉस्पिटल ब्रांच चूज करना जो कल चूज किया था वो मत करना आई वांट टू शो समथिंग change the hospital branch don't use the branch that you have used yesterday Add one more new branch. Hmm. No, I don't want okay create this hospital now use the same hospital save it I will let you know what to do Yes. okay go to the patient you are in the patient now patient creation Yes. form Yes. huh. Okay so how many hospital branches do you have right now 4. total four I, I don't want to create new but yesterday how many patients we were having only one for that Yes. patient what branch you have selected Mm, Let me check. okay let it be create this patient with any branch remember what branch you are creating akodi okay select Yes. akodi okay and save this patient Yes. create one more patient with akodi branch only with same branch akodi branch only Yes. okay now we are having how many patients are there 3. three patients two are with akodi branch and one is with what which branch what was the branch of earlier patient Wait, sir. It is not visible here. okay, check it Select fail to display. now you can open that object also right that field Yes. One is Pimpri and two is Akodi. now create one more patient with pimpri branch I want to show something Okay. one more patient with pimpri branch
Yes. Okay. Now, students, there are 4 patients available in our database, right? Out of which 2 patients having hospital branch as Pimpri and 2 patients having hospital branch as Akoli. Now, Sonali, go to that hospital branch tab, hospital branch object or the hospital name, Yes. right? Just show all. Okay. Now open Akoli. Yes. Go to related. Related. So here, students, you can see that there are 2 patients are available, right, for this branch. Okay. Now similarly for Pimpri also there will be 2 patients. Now go to the main page of this hospital branch. Show all the record. Now student concentrate here. What I am doing? I am deleting here. Go to this hospital main page of hospital branch. All records. Yes. Okay. So here I am deleting Akodi branch from my database. मैं मेरे Akodi branch को मेरा database से delete कर रहा हूँ. So now delete that Akodi record. Yes. Right? Okay. Now we are having only 3 branches available. Okay. Now just go to that patient tab. Just wait. Just wait. Now for patients, how many patients were there? Earlier, 4 patients थे, right? 2 कौन से थे? अकोडी के थे और 2 पिंपरी के थे. Now see, how many patients are there now? कितने Two. पेशेंट्स बचे अभी हमारे पास? 2. 2 कहाँ पे गए? हमने कौन सी ब्रांच डिलीट की थी अभी? हमने कौन सी ब्रांच? Akodi. राइट. सो जो भी अकोडी के पेशेंट्स थे वो पूरे डिलीट हो गए हमारे डेटाबेस से, राइट. ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. जो भी मास्टर डिटेल में इसमें अभी 2 चीजें हैं. जिस जिस ऑब्जेक्ट पे हमने कौन से ऑब्जेक्ट पे फील्ड बनाया था, यहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट पे फील्ड बनाया था? पेशेंट पे फील्ड बनाया था, राइट. पेशेंट वाज लुकिंग टू दिस, what I mean to say, let me share, just a minute, let me open one paint and then I will describe this particular thing to you. So हमने the field was created on the object और उसका नाम था patient. और वो जो फील्ड था वो रिलेशन था, वो किसको देख रहा था? It was looking towards what? एक मिनट, let me share my screen, then I will elaborate this thing to you. So students, can you see my screen? Yes, sir. Right. So हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स थे, राइट. विच वे कौन से ऑब्जेक्ट थे? पेशेंट एंड हॉस्पिटल ब्रांच. So consider
ये मेरा पेशेंट है, राइट? एंड सेकंड वन वाज माय, कौन सा ऑब्जेक्ट था हमारा? वी वर हैविंग वन मोर ऑब्जेक्ट, एंड अगेन वी वर हैविंग वन मोर एज अ थर्ड ऑब्जेक्ट। हमने कितने ऑब्जेक्ट्स लिए यहाँ पे? 3 ऑब्जेक्ट्स है, राइट? कौन से है? पहला मेरा जो ऑब्जेक्ट था, राइट, वो कौन सा ऑब्जेक्ट था मेरा? यस, विच वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट? Patient. पेशेंट, राइट, राइट। ये मेरा पहला पेशेंट ऑब्जेक्ट था, राइट? विच वन वाज माय सेकंड ऑब्जेक्ट? यस, डॉक्टर, Doctor. राइट, राइट। Doctor. Again, yes, very good. Suppose this is my second object, and third one is my branch, right? Hospital branches. Yes, very good. इसको मैं सिंपली बोलता हूँ, राइट? नाउ ये मेरे अभी 3 ऑब्जेक्ट्स है। नाउ इसमें मैंने क्या किया है? पेशेंट ऑब्जेक्ट पे मैंने एक फील्ड बनाया है, राइट, जिसको मैंने क्या बोला है? लुकअप बोला है। क्या बोला है उसको? यस, कौन सा फील्ड बनाया है मैंने? Lookup प्लीज कम field. अप। लुकअप फील्ड, राइट? और वो जो लुकअप फील्ड है मेरा, इसका इसके साथ लुकअप है, राइट? और इसका इसी के साथ मास्टर डिटेल है, राइट? Yes, sir. देखना अभी क्या चीज होता है यहाँ पे। ये इसके साथ क्या है? इसका हॉस्पिटल ब्रांच के साथ इसका कौन सा रिलेशन है? मास्टर डिटेल। और इसके साथ कौन सा रिलेशन है? लुकअप। सो जिस ऑब्जेक्ट पे, नाउ टेल मी ऑन विच ऑब्जेक्ट वी हैव क्रिएटेड द फील्ड। ये दोनों ही फील्ड किस ऑब्जेक्ट पे किए थे हमने? टेल मी। Patient Patient. object. पेशेंट, Patient. राइट? या वेरी गुड। सो जिस ऑब्जेक्ट पे हमने पेशेंट फील्ड बना, या जिस ऑब्जेक्ट पे भी हम फील्ड बनाते हैं, दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज, हमारे टेक्निकल भाषा में हम उसको हर बार बोलेंगे चाइल्ड ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे हम उसको? चाइल्ड ऑब्जेक्ट। सो पेशेंट क्या हो गया हमारा? चाइल्ड ऑब्जेक्ट, राइट? एंड एंड हमने पेशेंट ऑब्जेक्ट पे फील्ड बनाया, लुकअप दिया, मगर वो किसके साथ लुकअप दिया था? टेल मी। डॉक्टर के साथ, राइट? किसके साथ लुकअप दिया था हमने? Doctor. डॉक्टर के साथ, राइट? सो डॉक्टर विल बी अ पेरेंट। तो क्या बोलेंगे हम? पेरेंट। में डॉक्टर क्या है हमारा? पेरेंट ऑब्जेक्ट, राइट? सिमिलरली अगेन, ये ये एक रिलेशन हो गया। ये रिलेशन में पेरेंट कौन है? डॉक्टर है। और चाइल्ड कौन है मेरा? पेशेंट है। सिमिलरली ये मेरा दूसरा रिलेशन है। तो किसके ऊपर मैंने फील्ड बनाया था? ऑन विच ऑब्जेक्ट आई हैव Patient. क्रिएटेड द फील्ड? पेशेंट। Patient. अगेन पेशेंट, वो सेकेंड रिलेशन में भी चाइल्ड कौन रहेगा? यस, Patient. इन सेकेंड रिलेशन also my patient will be a child object, right? And my hospital branch will be what? ये क्या रहेगा मेरा? Parent Parent, object. yeah, right? So जो भी मेरा second, this second one is my
parent. Now tell me, अभी अभी आपको पिक्चर क्लियर होगा. नाउ फर्स्ट वाले रिलेशन में चाइल्ड कौन है? पेशेंट है. सेकंड वाले रिलेशन में पेरेंट कौन है? डॉक्टर है. अगेन सेकंड रिलेशन में भी हमने पेशेंट के ऊपर ही रिलेशन बनाया है. तो पेशेंट हो गया हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट और हॉस्पिटल ब्रांच हो गया हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट. सो अगर अगर मैंने मास्टर डिटेल में से जो ऑब्जेक्ट मास्टर डिटेल रिलेशन में मेंटेन्ड है, अभी हमारे यहाँ पे मास्टर डिटेल में कौन है रिलेशन में? मास्टर डिटेल में पेशेंट और हॉस्पिटल ब्रांच, इन दोनों के बीच में मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है. और इस रिलेशन में अगर मैंने पेरेंट ऑब्जेक्ट डिलीट कर दिया तो उसके सारे चाइल्ड्स, अभी जैसे मैंने अकुर्डी हमने कौन सा ब्रांच डिलीट किया था वहां पे? अकुर्डी. और अकुर्डी ब्रांच में कितने पेशेंट्स थे? 2 पेशेंट्स थे. मतलब अकुर्डी ब्रांच के कितने चाइल्ड्स थे? उसके कितने चाइल्ड थे? तो अकुर्डी ब्रांच के 2 चाइल्ड थे. ऐसे हजारों चाइल्ड्स हो सकते हैं, हजारों रिकॉर्ड हो सकते हैं. अभी हम यहाँ पे हजारों रिकॉर्ड्स क्रिएट करते बैठेंगे तो टाइम नहीं मिलेगा हमें, राइट? सो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव शोन दैट कि उसमें सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स थे. यू कैन कंसीडर एनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड ओवर देयर. And if you delete any parent record, right, which is involved in master detail relationship, then all the corresponding childs will be deleted. That is the thing with this master detail relationship. But on the other side, on the other side, if we delete the parent of the relationship which is lookup relationship, अगर हमने उल्टा केस किया कि अभी मेरा रिलेशन है सपोज लुकअप रिलेशनशिप, उसमें मेरा किसके बीच में रिलेशनशिप? पेरेंट एंड सॉरी पेशेंट एंड डॉक्टर. सो एक डॉक्टर के पास सपोज 10 पेशेंट है. सो उस डॉक्टर के कितने चाइल्ड हो गए? 10 चाइल्ड हो गए. और उस डॉक्टर को मैंने डिलीट किया, राइट? तो पेशेंट डिलीट नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि वो लुकअप में थे. और अगर मास्टर डिटेल रिलेशनशिप हम बिल्ड करेंगे पेशेंट एंड डॉक्टर के बीच में, तो if we delete the parent record, and all the child record will also get deleted. So this is the difference, another difference between lookup and master detail relationship, right? Is this clear to everybody? yes, sir. Now Sonali, do one thing, share your screen and create 2 doctors having 2 patients, and delete any one doctor and show them that the corresponding corresponding childs are not getting deleted, क्योंकि उनके बीच में कौन सा रिलेशन है? लुकअप रिलेशन. Sonali, can you hear me? Hello? Yes, sir. So do you understand what you need to do? Yes. Create 4 पेशेंट्स, 3-4 पेशेंट बनाओ जिसमें से 2 पेशेंट एक डॉक्टर के पास विजिट को जाए और दूसरे 2 पेशेंट दूसरे डॉक्टर के पास जाए, और एक डॉक्टर कोई डिलीट करके दिखाओ. Okay. हाँ. Once you have created that,
Those four records, show your patient object, how many records are there, and also show the doctor's name in the list view by changing that list view. Okay. This is very common question in most of the interviews. Lookup and master data relation. What is the difference between lookup and master? So पहला difference है कि master detail is a mandatory field, lookup is not mandatory, and if we delete the parent in the master detail relationship, then all the corresponding child record will also get deleted. Whereas in case of uh, uh, if we delete the parent in the uh, lookup relationship, then all the corresponding child will not be deleted. So here, how many records are there? 4. Four, right? And who is the doctor? Two Sagar record is Patil. assigned with R. Badani and 2 record is assigned with Sagar Patil. Okay. Now, students, you can clearly see that there are four records. Two records are having the doctor as a Sagar Patil, and two records or the two patients having the doctor as Badani, right? So, what we can do now, Sonali, go to the doctor tab and delete any one doctor. Yes, sir. I deleted Sagar Patil. Yes. Now, See. see, here you can see now how many records are there? Four records. Now what happened? Only that field becomes blank. डॉक्टर फील्ड जो थी ना वो ब्लैंक होगी. सागर पाटिल निकल गया यहाँ से, राइट? चारों के चारों पेशेंट का रिकॉर्ड एज इट इज है, सिर्फ वो रिलेशनशिप मिट गया, राइट? या फिर वो उसमें से वो डेटा चला गया. बट वही अगर हमने डॉक्टर के साथ में, डॉक्टर एंड पेशेंट के साथ में मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बिल्ड किया होता, तो ये दोनों रिकॉर्ड डिलीट हुए होते. We could not have these two fields as a blank. Rather, we could have only two records instead of having four records. Is this clear to everyone? This point? Any doubt? No, sir. No, sir. Very good. Now, the next concept we will discuss is a page layout. Now, Sonali, go to the patient, any one patient, that form of the patient, Okay. new patient. Here. New patient. Now, here, students, you can see एक लाइन में सारे फील्ड्स एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक दिख रहे हैं ना. पेशेंट नेम है, फिर उसका ईमेल या डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो भी फील्ड्स, डेट ऑफ कॉल या बाकी के जो भी फील्ड्स है, इट इज कमिंग वन बाय वन, राइट? एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, वन बाय वन, राइट? बट the business may required to display this fields in a particular fashion. क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा स्पेस का भी वेस्टेज हो रहा है. अगर आप देख रहे हो ये सिंगल कॉलम है, एक ही कॉलम में दिख रहा है, आधे कॉलम का स्पेस, राइट हैंड साइड का स्पेस आपका एम्प्टी है, राइट? सो और अगर मुझे इसको कैटेगराइज करना है, जैसे सेक्शंस डालने हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे ही फील्ड्स एक के नीचे एक आ रहे हैं. अगर मेरे को सेक्शन डालना है लाइक बेसिक इंफॉर्मेशन, देन उसके नीचे मेडिकल हिस्ट्री, या फिर और अपॉइंटमेंट हिस्ट्री, ये सारे एक के नीचे मतलब सेक्शन के फॉर्म में अगर डिस्प्ले करना है, सो वी नीड टू गो टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज पेज लेआउट. हमें पेज लेआउट इसका चेंज करना पड़ेगा. सो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग you need to go to the your
Sonali, now go to your object manager setup. Go to the setup, go to the object. जिस ऑब्जेक्ट का आपको दिखने में थोड़ा सा अलग करना है, राइट, उस ऑब्जेक्ट पे आपको जाना है, राइट. उस ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाओ, उस ऑब्जेक्ट को ढूंढो, जस्ट क्लिक ऑन दैट ऑब्जेक्ट, राइट. This is the page that you are well aware of. Details, then fields and relations. उसके नीचे ही आपको एक और एक ये मिलेगा, that is page layout. So just click on this page layout. Now यहाँ पे if you can see, one page layout is already created, right. ये by default page layout है. जो page layout अभी आपने देखा ना, जो मैंने आपको अभी देखा था, patient, new patient जब आप add करते हो, that is system generated page layout. It is already created and that is created by the Salesforce itself. Now if you wanted to create a new page layout, that so that we can have the fields to be displayed इन पर्टिकुलर थिंग, अभी आप देखोगे वो जो फील्ड्स बने हैं, राइट. अगर अगर वो फील्ड्स कैसे बने हैं, पहला क्या था मेरा फील्ड में, पेशेंट नेम, फिर था डेट ऑफ एप्लीकेशन, फिर था सपोज ईमेल, फिर था कॉन्टैक्ट नंबर. मुझे इस तरह से नहीं डिस्प्ले करना है. व्हाट आई नीड टू हैव, मुझे पेशेंट नेम पहले दिखाना है, उसके नीचे मुझे दिखाना है ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर. मुझे मतलब इन शॉर्ट, I also wanted to change the order of the fields, right. वो किस ऑर्डर में डिस्प्ले हो रहे हैं वो मुझे चेंज करने, वो सिंगल कॉलम में डिस्प्ले हो रहे हैं, मुझे उसको 2 कॉलम्स में डिस्प्ले कराना है, मुझे उसको सेक्शन में डिस्प्ले कराना है. All these things are controlled with the help of page layout. And one more advantage of the page layout is that, now for example, कोई डॉक्टर अगर अपने इसमें जाए, Sonali, go to that this object application. Go to the application. Yes. Go to the doctor. Go to the doctor tab. Open that R Badani. He is having some patient, right? Go to this related. Right. Okay. Now यहाँ पे आर बदानी डॉक्टर जो है उसको 2 पेशेंट असाइन हुए हैं, तो उसको पता चल जाएगा कि मुझे ये 2 पेशेंट है, उन सबका कच्चा चिट्ठा यहाँ पे खुल जाएगा वो अगर इसके नाम पे क्लिक करेगा, राइट. सो ओपन एनी पेशेंट फ्रॉम हियर, उसको खोलो, पेशेंट नेम, कोई भी एक पेशेंट खोलो, राइट. इसमें सारे ही डिटेल्स उसको दिख रहे हैं, राइट, कि हॉस्पिटल का शेयर कितना है, डॉक्टर का शेयर कितना है, ये सारे डिटेल्स दिख जाएंगे. ईमेल नंबर, ईमेल आईडी भी दिखेगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखेगा उसको. तो डॉक्टर कल क्या कर सकता है, राइट. डॉक्टर का खुद का भी क्लिनिक होता है ना. एक तो पहली बात, हॉस्पिटल को कितना शेयर वो पेशेंट से ले रहा है वो नहीं दिखाना है हॉस्पिटल को. एज अ हॉस्पिटल, डॉक्टर को मतलब हॉस्पिटल क्यों चाहेगा कि डॉक्टर को दिखाया जाए कि मैं ये पेशेंट से कितना पैसा कमा रहा हूं, राइट. डॉक्टर को यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई ये पेशेंट से मैं मेरे को 600 रुपए मिल रहे हैं या $600 मिल रहे हैं और हॉस्पिटल को $400 मिल रहे. हॉस्पिटल कुछ उल्टा भी कर सकता है, हॉस्पिटल खुद 800 रुपए मार ले, राइट. ये तो हॉस्पिटल के हाथ में है ना, और डॉक्टर को सिर्फ 200 रुपए दे दे. अगर उस तरह से हॉस्पिटल चीट कर रहा है, तो व्हाट एवर यू में से चीट कर रहा है, तो हॉस्पिटल कभी नहीं चाहेगा कि हॉस्पिटल का शेयर डॉक्टर को पता चले. डॉक्टर का शेयर पता चले दैट इज फाइन, या फिर पेशेंट ने कितना फीस पे किया है दैट इज आल्सो नॉट, उसको भी नहीं दिखाना चाहिए. क्या क्या दिखाना चाहिए, सिर्फ भाई तुझे कितना मिलेगा वही तू जान ले, बाकी का हम कितना निकाल रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है.
ना मुझे ईमेल आईडी दिखाना है डॉक्टर को, ना मुझे डॉक्टर को कांटेक्ट नंबर दिखाना है। अगर ये डिटेल्स डॉक्टर को पता चल जाए तो डॉक्टर फिर से वो पेशेंट को कांटेक्ट कर सकता है कि भाई तेरा डायग्नोसिस हॉस्पिटल के थ्रू इतने में जा रहा है, मैं ही तेरे को डायग्नोसिस कर रहा हूँ, तो व्हाई नॉट यू कनेक्ट विथ मी, visit to my clinic and I will sort it out the things, right? So किसको कौन सा फील्ड दिखाना है, अभी हमारे इसमें क्या हो रहा है, सारे फील्ड सबको ही दिख रहे हैं, तो किसको कौन सा फील्ड दिखाना है वो भी हम कहां से कंट्रोल कर सकते हैं, बाय यूजिंग पेज लेआउट। सो इट्स अ वन टाइप ऑफ सिक्योरिटी वी कैन हैव। मतलब अभी हमारा मैंने आपको पहले ही बोला था कि अलग अलग प्रोफाइल्स रहेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ तो अलग अलग प्रोफाइल्स रहेंगे। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में ये जो हम हेल्थ मैनेजमेंट का एप्लीकेशन बना रहे हैं, इसमें कौन से प्रोफाइल हो गए, एक तो पेशेंट हो गया, राइट, एक तो डॉक्टर हो गया, या फिर एक तो हॉस्पिटल का ब्रांच हो गया, ये 3 प्रोफाइल हो गए। या आपके कॉलेज में आपके प्रोफाइल कौन से मैंने आपको बहुत बार बोला है, स्टूडेंट, प्रोफेसर, एचओडी, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, ये 5-6 प्रोफाइल हो गए, राइट। सो आपने कितना फीस भरा है, राइट, ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज फाइन। एज अ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए आपने कितना फीस भर रहे हो। प्रोफेसर को जानने की जरूरत है क्या, नो। एचओडी को जानने की जरूरत है क्या, नो। प्रिंसिपल को प्रोबेबली यस, मैनेजमेंट को यस, इट हैज टू बी राइट, मैनेजमेंट को तो पता चलना चाहिए। मतलब वो जो फील्ड है स्टूडेंट का फीस पेड, वो फील्ड हमारे आपके कॉलेज के ऑर्गेनाइजेशन में 5 प्रोफाइल है, 5 में से वो फील्ड हम किसी 2 ही प्रोफाइल को दिखाएंगे या 3 प्रोफाइल को ही दिखाएंगे, बाकी प्रोफाइल को नहीं दिखाएंगे, राइट। सो दैट इज व्हाट कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ व्हाट, page layout. So simply go to this page layout again. So Sonali, Yes, sir. Here it is. go to the page layout. Now create new page layout and also explain them how to create this page layout. ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट पे गए आप, ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद सॉरी ऑब्जेक्ट मैनेजर, ऑब्जेक्ट को ढूंढो, पेज लेआउट पे क्लिक करो, एग्जिस्टिंग पेज लेआउट खुलेगा। एग्जिस्टिंग मतलब जो सिस्टम जनरेटेड है, हमें वो नहीं चाहिए, हमें अपना वाला बनाना है, तो न्यू पे क्लिक करेंगे। एंड सोनाली प्लीज एक्सप्लेन देम हाउ टू क्रिएट इट नाउ ऑन। Yes. Existing page layout is a patient layout. Suppose you have to change your name, change that, then save. तो आपका ऐसा विंडो ओपन होगा। See here the details of patient. It is in one section, that is the patient information, patient name, date of call, fees, city, state. So I can create 2 sections. Here it is, you can change the name. किसका नेम है वो, Section name, it सेक्शन, is a section name. सेक्शन नेम, जैसे बेसिक इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर वट एवर इट मे बी, राइट, Then कॉन्टैक्ट डिटेल्स। you have to select here layout, that is a 1 column or 2 column. I have selected 2 column. Then tab key order, you have to select, you can select left, right, top down. I can select here left, right, then okay. ये क्या है पता है आपको, ये टैब की का, जैसे देखो आप कोई भी फॉर्म भरते हो, राइट, कोई भी एक फॉर्म भर रहे हो, तो आपने एक फील्ड डाल दिया, नेम डाल दिया, राइट, और जैसे आप टैब की दबाते हो ना, टैब,
आपके कीबोर्ड के ऊपर एक टैब की होता है, सो वो टैब की दबाने से वो नेक्स्ट बॉक्स में चला जाता है, राइट। अभी आई डोंट हैव एग्जांपल राइट नाउ, तो वो क्या होता है, नेक्स्ट बॉक्स में चला जाता है। और इफ आई कैन हैव एनीथिंग, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, लेट मी चेक। Just a minute, I will share my screen and I will explain what was that. I'm not getting finding proper. Just a second, I will share my screen. Just give me a second. Oh, I'm not getting any example to show. Whenever आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हो ना, कोई भी फॉर्म, तो उसमें क्या होता है कि आप जब एक एक टेक्स्ट बॉक्स है, राइट, उसमें आपने डेटा एंटर किया, लेट्स से योर फर्स्ट नेम एक्स वाई जेड, आपने डेटा एंटर कर दिया, राइट। और डेटा एंटर करने के बाद आप एक तो मैन्युअली क्या करते हो, माउस लेके दूसरे फील्ड में आप लेके जाते हो, राइट, और वहां पे क्लिक करते हो और वहां पे आपका ये डालते हो, लास्ट नेम। सपोज फर्स्ट फील्ड वाज फर्स्ट नेम, उसके बाद में नेक्स्ट फील्ड क्या था, लास्ट नेम, राइट। सो जैसे ही आप माउस लेके जाके दूसरे फील्ड में लेके जाते हो और वहां पे क्लिक करते हो एंड देन यू कैन एंटर द लास्ट नेम। बट आपका अगर माउस खराब हुआ है, सो इन दैट केस यू कैन नॉट ऑपरेट। बट अवर कंप्यूटर्स आर सो स्मार्ट, सो आप अगर टैब दबाओगे ना, टैब, so it will automatically, that cursor will automatically go from one text box to the next text box. नाउ इट इज अप टू यू कि आपको, आपके अगर दो कॉलम्स है, राइट, दो कॉलम मीन्स फर्स्ट कॉलम, उसके नीचे सेकंड कॉलम, अगर मेरे पास 6 कॉलम है, किस तरह से, जस्ट कितने कॉलम है हमारे पास, 6 कॉलम। लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड आई विल एक्सप्लेन यू। इट वुड हैव बीन बेटर दैट आई कुड फाइंड लाइव एग्जांपल, मुझे अभी फॉर्म कोई मिल रहा नहीं है ऑनलाइन।
Can you see my screen, students? Please let me know. Yes. Can you see my screen? Yes. So now, right. So now here I'm having some tab. This is my first text box. Suppose there are several text boxes are available, right? ये मेरा सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स है, उसके बाजू में, राइट? उसके बाद में मेरा और एक टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे, राइट? उसके बाद में यहाँ पे और एक टेक्स्ट बॉक्स है, राइट? सो लाइकवाइज यू कैन हैव सेवरल टेक्स्ट बॉक्सेस, राइट? ये मेरा फर्स्ट है, ये वाला मेरा फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है, ये मेरा सेकंड है, ये मेरा थर्ड है, ये मेरा फोर्थ है, एनीवे, राइट? सो नाउ नाउ जब आप यहाँ पे जाओगे, जब आप फर्स्ट इसमें डेटा एंटर करोगे, राइट? So in that first text box, if somebody is entering the data, right? Let's say his first name, right? He is entering the data first name, and if we press the this key, टैब की, तो वो टैब की दबाने के बाद ना वो इधर जा सकता है या फिर इधर जा सकता है, राइट? इधर वो सपोज एंटर करेगा लास्ट नेम, राइट? सेकेंड वाले में राइट हैंड साइड में एंटर व्हाट, लास्ट नेम। यहाँ पे क्या एंटर कर रहा है वो, सपोज लास्ट नेम, राइट? फोर्थ नेक्स्ट वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है, लेट्स से दिस वन, राइट? ये वाला है, यहाँ पे उसको है सपोज नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में उसको क्या एंटर करना है, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ। नाउ इसमें कुछ और एक डिटेल होगा लास्ट वाले में, फॉरगेट अबाउट इट। नाउ once he enter the first name, then whether to go for this date of birth और whether to go for this last name, अगर माउस है तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, बट अगर आपका माउस खराब हो गया है एंड इट्स नॉट वर्किंग, तो इन दैट केस यू नीड टू एंटर द टैब की। तो वो टैब की दबाने के बाद वो आइदर डीओबी पे जाना है उसको या फिर लास्ट नेम से जाना है, so that will be decided by that zigzag. Sonali, show that once, share your screen. Yes, sir. Remove this. Go once again. Yes. Here it is. So you see this zigzag. ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाला जो है वो क्या बोल रहा है, अगर टैप करेंगे तो इस तरह से जाना है, जिस तरह से उन्होंने डिजाइन किया है ना उस तरह से जाएगा वो। और सेकेंड वाले Left, में right. हाँ लेफ्ट राइट करेगा या टॉप टू बॉटम जाना है, दैट वी नीड टू डिसाइड। हियर वी कैन कंट्रोल दिस, राइट? सो दैट वाज द थिंग इज देयर। ओके, टू मूव अहेड नाउ, also parallelly explain them what's going around. See here, I have name at basic information section name. Then you can drag and drop your field in this basic information section. So
patient name, then city, then state, and date of call. You can change the order here. Firstly patient name, या फिर आप 2 कॉलम में भी इसको कर सकते हो. Here, then I have created creating one more section. That is hospital detail. Here it is. Then you can also drag and drop your field in this section. But I don't share my these two field, so simply I can remove here. You can see it is this panel is a properties and this is your remove. So I can remove this field. दैट मीन्स वो आपके पेज लेआउट पे दिखेगा नहीं, जो डिटेल पेज था ना हमारा एडिट पेज, उस पे दिखेगा नहीं. सो जो फील्ड आपको हाइड करनी है वो आपको ऊपर डाल देनी है, और जो फील्ड हाइड नहीं करनी है, जो दिखानी है, वो नीचे कहीं तो भी लेके आनी कोई सेक्शन में. जो सेक्शन में है वही दिखेगा, जो सेक्शन में नहीं है वो नहीं दिखेगा. जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप वो फील्ड पे जाना है और उसको नीचे लेके आना है. वो जब ग्रीन कलर में चेंज होता है तो वहां पे प्लेस होता है वो. अभी मैंने आपका डॉक्टर शेयर रिमूव कर दिया फिर, तो ये यहाँ पे दिखेगी आपको इन दिस सेक्शन. So I can just save this. Now go to patient. What happened? Have you assigned that Wait. page? Yes, sir.
No, it's not working. Just refresh the page once. Yes. I guess you have not assigned that page. Once you Wait. have created that page, you need to assign that. Go to that object manager once. Show that page to me. Go to the object, page names. Okay, so which page you have created? Just hold on. Patient. Explain them what huh, Yes, that yes. that page. Huh, there was a one Yes. button, right? Page layout assignment. Go back. Show them where you have clicked. Otherwise, they will confuse. Here it is. Huh. So now, students, there are two pages, right? One was the system generated page, right? And the second one was created by us, right? In front of you. Now, we need to assign that page. Unless and until assign that page to somewhere, it will not be there. It is there in the system. जैसे हमने ऑब्जेक्ट बना के रखा था, एप्लीकेशन बना के रखा था, वो सिस्टम में कहीं तो पड़ा है, मगर उसको पर्टिकुलर जगह पे लेके आना है, तो उस पेज को हमें असाइन करना है. So just click on that page layout assignment or the page layout assignment. Here. Hmm. Now, what was the object you can see? कौन सा object था हमारा? Patient. Go to that object. No, no. First, No. Go down. edit Here, this one. assignment. Hmm. Go down. What was the name of your object? Patient. No. Sorry. Okay, that is patient object. And what is the profile? Go to the system admin profile. Go to the system admin. Here. That is your profile, na? Huh. Now, students, here for this system admin, right? Wait. Don't click on that. Go back. Here. Huh. System Now, admin. here for system admin profile, right? Which layout is assigned? Patient layout, right? System admin के सामने देखो क्या लिखा है? Patient layout. Now we have to change it. System admin के लिए क्योंकि आपका प्रोफाइल नाउ आप जिस प्रोफाइल को अभी यूज कर रहे हो दैट इज योर सिस्टम एडमिन प्रोफाइल, राइट? So system admin profile mein, now go to the main page of page layout. Sonali, show them how many page layout were there. Wait. 2. Two, right? What is the name? What are them name? One is patient layout and second one is patient new layout. हाँ. So patient layout जो है वो system generated है. अभी हमें क्या करना है? उस layout को निकाल के patient new layout डालना है. Right? So go to the page layout assignment. Click on that button. Yes. Go to the system admin. Here. Change that page layout now.
seeing the option? No, Click on it is this profile. right. No, no. Click on this right hand side. Click on this. Go back to the system admin profile. Yes. Huh. Here on the right hand side, can you see some edit button or something like that? Uh, Upper or down? No, no. Huh. Then click on this right hand side patient layout. Is it clickable? Yes, yes. It's again go back to patient layout. Hmm, can you share your credential? Or students, so let it be. We will discuss this. We just create a page layout, and for page layout assignment, we will meet in the evening. Okay. Yes, sir. Otherwise, I will have to log in, but I need to go to the office right now. Okay. Wait, sir. I have edited this page layout, standard page layout. No, let it be that. For that, let it be. We will discuss it. Okay. Okay. Stop the recording. Yes, sure.